start is the main basic. मैं कहाँ से start करूँ? Yeah, no problem. So where should I start is the main problem I have mostly come across with children. Start from wherever you want to. कोई रूल नहीं है, आपके दिमाग में जो पहली चीज आती है आप उससे स्टार्ट करो, है ना? That's what I do when I have to write a blog. मुझे कोई blog लिखना है तो मैं टॉपिक डिसाइड करके I just start writing. मैं वहां पे उसे एडिट नहीं करती हूँ, मैं उसे जज नहीं करती हूँ कि मैं गलत लिख रही हूँ या कैसा है. पूरा कंप्लीट होने के बाद आई रीड इट एंड उसके बाद जो चीजें मुझे इररिलेवेंट लग रही है उससे रिलेटेड कि ये जरूरत नहीं है, आई रिमूव इट और आई ऐड न्यू थिंग्स. देन आई टेक मोर टाइम एंड आई रीड द ब्लॉग और आर्टिकल वेरी नेक्स्ट डे. एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ उसे पब्लिश करने के पहले, ताकि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव फिर से मिले. टाइम के बाद आप में भी आप रात को लिख रहे हो, नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप इन मॉर्निंग और आप कुछ अलग सोच में हो तो आपको और अच्छे आइडियाज आते हैं, है ना? तो हमेशा आप ओपन रहो, अपने ऊपर फोर्सफुली लिखने की कभी कोशिश मत करो. सो इट हेल्प्स यू. एंड एक मुझे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को कहनी, क्योंकि आप इस यंग एज में हो, सो इफ यू वांट आप एक जर्नल या डायरी प्लीज मेंटेन करें. एनी वन ऑफ यू, डू यू मेंटेन अ जर्नल और डायरी, अ पर्सनल डायरी? Raise your hand. Okay, Lavanya. Yes, And ma'am. okay. Yes, Good. ma'am. Atharvu, Lavanya. Yes, ma'am. Ananya. Quite a few. Nice. At least there. So what do you write in your diary, if I may ask any one of you? Ma'am, personal feelings about events. Okay, good. Ma'am, everyday routines, whatever I do in my whole day. Good. Yes, Atharvu? Ma'am, I write of how I see things around the world, how different people don't see it, how I see it, and how I feel. Okay. Lavanya? Nice. Ma'am, I do write thoughts of the day. Nice. Ma'am, I write usually once a month, and ma'am, I write what I feel about that particular month, and I write about the special events that happened. Good thing to do, Lavanya. So see, आप जब लोगों से बात करते हो, you understand कि आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो, है ना? Like Atharvu said that different perspective, एक चीज को देखने के कितने तरीके, how he sees a particular thing, वो लिखता है ना? So it's not that आपको रोज लिखना है. Since you are students, you have a lot of studies, extracurricular activities to do, but writing can be a part of your life from this very age. You just need to take out 10 minutes of your daily routine. Daily आप 5 चीजें लिख सकते हो. You can decide few things which you are grateful for, few things you want to do. You can even start with a to-do list. कि आज मुझे क्या क्या चीजें करनी है. What I do, I have this diary on my desk daily. Before sleeping, I write all the things I have to do the very next day. I plan ahead. Anna, so I am working. Things would be different for you, but if you do, even if you start practicing by having a daily to-do list or a daily diary, like the things you want to do next day or this weekend, or things you did, or the things you are grateful for, or like Atharva said and Lavanya said, ki month mein ek baar she reflects on what happened in the month, good or bad events and everything. So there are so many things. It gives you practice, एक discipline. Writing में discipline बहुत जरूरी है ना? To understand if you can write, उसके लिए लिखना बहुत जरूरी है. So it's not important कि आप सीधी poetries लिखो, बड़ी stories और books लिखो. Start small, but start रोज कोशिश जरूर कीजिए. So आप में से किसी को पता है mental health क्या होता है? You know what mental health is? You can raise your hands. When a mind is positive. Yeah, raise your hands. Yeah, Lavanya, who was saying? Or maybe Shivangi. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, when a yes, mind Lavanya. is healthy, when a mind is healthy and happy, and we are satisfied with what we have. Yeah, that's a mental state. Good mental state. Yeah, Kian. Yes, ma'am. Ma'am, about our feelings or when we are happy. Yeah, very close enough. So I'll tell you in a very simple language. Mental health, जैसे we take care of our physical health. Mama कहती है अच्छा खाना खाओ, दूध पियो, अच्छी vegetables खाओ, you will be healthy all the time, है ना? Mental health के लिए हमारी जो अंदर जो होता है ना, our mind, it should be stress free, burden, pressure ना हो, हम हमेशा खुश कैसे रहें, इसके लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना? तो वहाँ पे भी तो कुछ खाना देना पड़ता है ना? So writing can be that one खाना for you, है ना?
तो राइटिंग इट हेल्प्स यू टू वेंट आउट. आप जैसे दिन भर में परेशान हो, स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया, मैम ने कुछ कह दिया, बट यू कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? लोग आपको रोज मिलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ बोलेगा, बट यू जस्ट कांट कीप इनसाइड यू. आप अंदर ही अंदर रखोगे, यू वोंट गेट आंसर्स. डायरी में लिख देने से, इट्स डायरी कुड बी योर फ्रेंड, यू नो. आप डायरी में रोज लिखो, या फिर आई होप रोज आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, बट कभी अगर किसी ने आपको कुछ कहा या कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी, यू कैन जस्ट वेंट आउट इन योर डायरी. इट्स लाइक वेंटिंग आउट टू योर फ्रेंड. आप अपने एक दोस्त को बता रहे हो, है ना? सो स्टार्ट डूइंग दैट. आज ये हुआ एंड दिस थिंग्स बॉदर्स मी अ लॉट, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती. दिस इज हाउ यू ओन योर फीलिंग्स. आपको बुरा लग रहा है, राइट? यू आर सैड. इफ यू आर फीलिंग एंग्री, तो वो एंगर ममा पे निकालने से अच्छा, पढ़ाई पे निकालने से अच्छा, वो एंगर आप लिख कर उस पेपर पे छोड़ दो, है ना? एंड सेम ये चीज आपको तब भी करनी है जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो. लाइक यू वांटेड अ साइकिल और यू वांटेड सम यू नो गिफ्ट. हैरी पॉटर की सीरीज चाहिए थी किसी को, या किसी को कोई ऐसा लॉन्ग वेटेड गिफ्ट चाहिए था जो मम्मा पापा ने सडनली ला कर दे दिया. अच्छी बात है ना ये तो आप वो भी लिख सकते हो कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड टुडे एंड मुझे ये चीजें मिली. इससे क्या होता है पता है? द डेज जब आप लोनली फील करते हो, लो फील करते हो, आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे सारे दोस्तों के पास इतनी अच्छी चीज है, मेरे पास कुछ भी नहीं है. आप जब वो डायरी पलट कर देखोगे, यू विल सी कितनी चीजें आपके साथ पिछले मंथ, मे बी 15 डेज पहले यू गॉट समथिंग, आप भूल जाते हो, है ना? तो ये चीजें आपको हेल्प करती है आपको अंडरस्टैंड करने में. राइटिंग हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ मोर. आप जितना लिखते जाते हो, आपको समझ में आता है कि आपको क्या फीलिंग्स हर्ट कर रही है. आप सेंसिटिव हो या आप स्ट्रांग हो, या आप चीजें झेल लेते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको बुरी बातें बुरी लग जाती है. तो दिस हेल्प्स यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ. या मिदोरी. Ma'am, few days ago I wrote a story about my real life. So Okay. In the story, I asked some questions to my mind, and I wrote that my mind answered my questions. Okay. Like this, what was in my mind, I just wrote it down into the story. Okay, so it's like what you wanted to hear from your mind, you wrote it down, right? Yes. Wow, very nice. That's a very good way. It's in a way you try to help yourself, है ना? Yes, ma'am. Very good, very good. That's really wonderful. And Priyanka, जैसे आप बता रहे हो हमें you know this whole process of journaling या writing, तो अगर बच्चों ने सुना हुआ, if you've heard of the Diary of Anne Frank, I think इसी तरह से ये किताब जो है वो आज you know it's one of the best books that people, one of the best. Yes, that people read. तो इसी तरह से वो सामने आई थी कि जब वो बंद थी एक जगह पर 2 साल के लिए, और किस तरह से उन्होंने हर रोज अपनी लाइफ रिकॉर्ड की थी. So it becomes quite मतलब दोनों तरह से it works out. तो ऐसा नहीं है कि हम जो पर्सनल अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं बिल्कुल सबसे पहले वो हमारे लिए है, पर कई बार वो कई और लोगों के लिए you know it becomes a kind of an inspiration. What would you say? Right. It becomes a survivor guide basically. आपकी एक गाइड बन जाती है. जैसे अथर्व ने कहा था, I remember he said that वो बहुत सी चीजों को और कैसे अलग देख सकते हैं वो लिखने की कोशिश करता है. So you never know आप में से कौन किस चीजों को कैसे देखता है. Like Midori, I hope I'm pronouncing your name right, Midori. So जैसा उसने कहा कि okay, उसने एक डायलॉग क्रिएट किया, कॉन्वर्सेशन उसके और उसके माइंड के बीच में क्रिएट किया. सो सबके अलग अलग तरीके हैं, पर्सपेक्टिव है, एंड यू नेवर नो ओवर द पीरियड जब आप रोज लिख लिख के वो क्या बन जाए. एक बुक अपने आप में ही वो बुक बन सकती है. लाइक सोनिया जी वेरी वेल कोटेड द एग्जांपल ऑफ द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. हम जनरेशन से उसे पढ़ते आ रहे हैं. आई एम श्योर आप लोगों में से किसी ने पढ़ी होगी, नहीं है तो पढ़ो प्लीज. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. एंड मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, लाइक आप लोगों ने कहा हमारा हैप्पी स्टेट, गुड स्टेट, तो मैंने जैसे कि कहा कि वो हमारे लिए खाना है ना, एक हमारे लिए जरूरत है. रोज हम कैसे, हम ऑब्वियसली स्ट्रेस तो आएगा, आपको पढ़ाई का बर्डन आता ही होगा ना, एग्जाम है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पैंडेमिक है, हम कहीं जा नहीं पाते, यू फील सो स्ट्रेस. सो आई एम नॉट सेइंग आप लिखोगे राइटिंग करोगे तो सारा स्ट्रेस चला जाएगा, बट देयर इज समथिंग, कुछ चीजें हैं जो आपको अपने लिए बिल्ड करनी पड़ेगी, है ना. कुछ चीजें हैं जब आप अकेले हो और आप घर में हो तब आप क्या कर सकते हो, उसी टाइम पे आपको अपने लिए कुछ ऐसी चीजें बनानी है
जो आपको हेल्प करे चीजों में बने रहने के लिए, उसे हम रेजिलियंस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइटिंग इस तरह से हेल्प करती है कि इट हेल्प्स यू टू ओन योर थॉट्स। जैसे मैंने अभी कहा, आपको समझ में आता है कि आपके थॉट पैटर्न्स कैसे हैं, हाउ यू आर फीलिंग दीज डेज, आप रोज क्या चीज लिख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि आप रोज एक ही बात क्यों लिख रहे हो, ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। या फिर मे बी यू आर गोइंग टू अ वेरी क्रिएटिव साइड, कुछ आप अच्छा ही लिख दे रहे हो, तो और भी अच्छी बात है। देन फॉर राइटिंग यू नीड डिसिप्लिन। राइटिंग में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। तो अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी लिखते हो, या वीक में 2-3 बार अपनी डायरी के साथ बैठकर अगर आप थोड़ा बहुत कुछ लिखते हो, तो आप में एक अपने आप आदत बन जाती है। यू जस्ट डोंट हैव टू सिट फोर्सफुली कि आज मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, मैंने बहुत दिन से उसे लिखा नहीं है, राइट। क्योंकि आई फील पोइट्री या कोई भी चीज आप फोर्सफुली नहीं लिख सकते। आप अगर मुझे अभी कहोगे कि इस पे एक पोएम लिख के बताओ, उसमें फर्क होगा, और जो पोएम मैं उस जोन में होकर लिखूंगी उसमें बहुत फर्क होगा ना। if I tell अरहत और लावण्या और कियान टू राइट अ स्टोरी ऑन द स्पॉट, लिख के बताओ, और अगर मैं आपको एक दिन का टाइम दूं कि आप आराम से मुझे एक स्टोरी लिख के बताओ, देयर विल बी अ डिफरेंस होगा ना दोनों की क्वालिटी में, लेंथ में, हर चीज में। तो ये जो डिफरेंस है, इसका गैप तभी कम होगा जब आप रेगुलर एक प्रैक्टिस में रहो, एक डिसिप्लिन रहे आपके अंदर कि यस मुझे आज लिखना है, आज ये चीज। और एक इसकी बहुत अच्छी खूबसूरत सी चीज है लिखने के बारे में कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, आपको खुद लगता है कि आप बस जल्दी से जाके डायरी में मैं ये 2 लाइन लिख लेती हूँ। काफी बार ऐसा होता है, यू विल बी इन अ मिडल ऑफ कॉन्वर्सेशन, आप कुछ और आपके दिमाग में कोई थॉट आया और वो फिर आप बाद में थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। तो इफ यू हैव अ डायरी, आप उसमें जाकर वो लिख सकते हो, एंड इट विल बी देयर फॉरएवर। आप उसको आगे फिर स्टोरी का रूप दो या पोएट्री का रूप दो, इट्स अप टू यू। एंड कहते हैं ना जैसे कि पर्सनल डायरी इज लाइक योर फ्रेंड। सो इसमें काफी बार अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, इट हेल्प्स यू टू रिलीव योर स्ट्रेस ऑल्सो। जैसे मैंने शुरू में क्या कहा था कि आप अपना एंगर गलत जगह निकालने से अच्छा आप अपनी डायरी पे जब वेंट आउट करते हो, आप वहां पर वो चीजें लिखते हो, तो आपके अंदर यू फील रिलैक्स। ऐसा होता है ना, हम किसी को गुस्सा चला देते हैं, उसके बाद सडनली थोड़ी देर बाद वी फील लाइक वी कूल डाउन, काम डाउन हो जाता है। तो ये काम आपकी डायरी भी आपके लिए कर सकती है। ये कुछ चीजें मुझे आपको स्पेशली मेंटल हेल्थ एंगल से डायरी के लिए जर्नलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, या डायरी आप क्यों मेंटेन कर सकते हो, कहना था। क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में काम करती हूँ और स्पेशली आप जैसे बच्चों से बहुत बातें करती हूँ, तो ये बहुत सही टाइम है कि आप अगर अभी से एक आदत डालो, डायरी हो या फिर आपको किसी को आर्ट का कोई भी फॉर्म पसंद है, तो एक मेंटल हेल्थ और क्रिएटिव साइड का बहुत डीप कनेक्शन है। व्हेन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन डूडलिंग, पेंटिंग, राइटिंग, या कोई भी फॉर्म का एक आर्ट होता है ना, अगर आप पोइट्री लिख रहे हो, स्टोरीज लिख रहे हो, वो आपको बहुत हेल्प करता है। इट हेल्प्स यू, इट्स लाइक अ मेडिटेशन। आप जानते होगे ना मेडिटेशन, है ना। Yes, ma'am. राइट। तो राइटिंग भी एक तरह की साधना है। इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत होती है। तो जब भी आप लिखो, और कभी भी अपनी राइटिंग को आप जज मत कीजिए, आप पहले लिखो, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करो, और उसके बाद एडिट करो, रीड करो, फिर आप उसमें से जो इररिलेवेंट पार्ट से हटाओ या ऐड करो। बट लिखते लिखते बीच में अपने आप को जज करके लिखोगे तो वो राइटिंग वो लिटिल होती जाएगी, उसकी जो खूबसूरती और क्वालिटी है वही घटती जाएगी। तो ये कुछ बातें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है या और भी कुछ, ब्लॉगिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं, ब्लॉग क्या होता है, if anybody of you wants to start a Yes. blog, if you have any questions, मुझे पूछो। Yes, Priyanka, we have, अभी आपके आने से पहले ही मैं बात कर रही थी, we have with us, one 14-year-old here, or 15-year-old, who has a blog. अभी 3-4 दिन पहले ही उन्होंने ब्लॉग शुरू किया है. So maybe we can come to blogging and talk about कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हम ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं. क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ पेरेंट्स बच्चों के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स तो बना के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स फॉरवर्ड हो रहे हैं. पेरेंट्स उन्हें हाँ, पेरेंट्स उनके they are the custodians of the channels. तो वो सब मैं बहुत देखती हूँ. मगर सीरियसली अगर हम देखें, जैसे अगर मैं यहाँ पे हमारे बीच में 14-15-year-old बच्चे भी हैं, तो उस एज तक पहुंचते पहुंचते आप अपना ब्लॉग मेंटेन करना, उसको आगे लेके जाना, you can manage that, and once a week आप टाइम निकाल लीजिए, तो I think 4 blogs in a month is a good way to start. तो इस तरह से हम
इस डायरेक्शन में अपनी कॉन्वर्सेशन लेकर जा सकते हैं. Children, you can get your questions together. I would request you all to excuse us for some time, say 2-3 minutes. I will be sending another link to you. There is some glitch here, which is going to close the meeting. So maybe 2 or 3 minutes, and I will, send another link to you. Please quickly join. There won't be much difference in time, just 2 minutes. So can I just end this right now, and then we take it over to blogging next? Yes, Right. ma'am. So children, quickly join when I send you the link in the common group. Thank you so much. Thanks, Priyanka. We'll be right back after a short break.